Hello aspirants and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 22nd September 2021. So let's start today's discussion. The first article states that India added 521 megawatts of rooftop solar in quarter second 2021, highest capacity installed in a quarter. Now, the background of this article states that according to the restoration of the energies in India, India in the second quarter of the year has actually installed about 521 megawatts of total energy by installing a solar panels in a particular area, and it is beneficial, or we can say it is a success for India because at the half quarter only India has established, or India has maintained the 521 of megawatt restoration of energy. So from prelim point of view, it was necessary for us to know that how much megawatt of energy that India has installed and what are its further plans for it. So India had added 521 megawatt of rooftop solar capacity in April June this year. The second quarter, April June this year, which is the highest capacity installed in a quarter according to Mercom India report. According to report given by Mercom India, it is estimated that that's the highest capacity that India has installed till now. India had added 521 megawatt of rooftop of solar capacity in the second by the calendar of 2021, which means 53% of increase in quarter to quarter compared to, मतलब लास्ट सेकेंड हाफ लास्ट कंपेयर करेंगे तो लास्ट सेकेंड हाफ में वी इंस्टॉल 341 मेगावाट, और इस बार जो है हम 521 इंस्टॉल कर पाए हैं. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट गिवन बाय मरकॉम इंडिया. ठीक है. रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस व अप टू 501% ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू दी 2020 से अगर कंपेयर करें 2020 में आई थिंक सो 85 मेगावाट तक ही सिर्फ इंस्टॉल कर पाए थे, और इस बार हमारा नंबर इट हैज़ इंक्रीज टू 521. तो अप्रॉक्सीमेटली 517% का इंक्रीज किया अगर हम ईयर बेसिस पे देखें तो. Rooftop solar capacity India April June has the highest in the quarter. As per the report, installations were significantly higher than the previous quarter despite of the second wave, or despite of the COVID situations or lockdowns, or the situation because of lockdown. Though also we are currently, or we have faced the second wave of COVID, then also India is working efficiently towards the restoration of any energy by plantation or by having a proper solar panels everywhere, and by restoring the 521 मेगावाट ऑफ एनर्जी. सो प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जानना ज़रूरी था करेंटली इंडिया ने कितने नंबर तक का मेगावाट एनर्जी रिस्टोर कर लिया है. Now we'll move to next article. The next article says that ADB cuts India's 2021-22 report forecast to 10%. अब इस न्यूज़ आर्टिकल का अगर बैकग्राउंड मैं बताऊं, सो बैकग्राउंड ये है कि ADB हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है. हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके रिपोर्ट के जो उन्होंने प्रायर रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट दिया था कि 2021-22 तक हमारा जो ग्रोथ होगा, ईयर ग्रोथ, उन्होंने 11% बताया था पहले, बट रिसेंटली उन्होंने उसको कट डाउन करके कर दिया है 10%, बिकॉज एडीबी का ये मानना है कि दे आर फोर्सिंग कि आगे जाके हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट पे बढ़ने वाला है, एंड देयरफॉर उन्हें हमारा ग्रोथ रेट जो 11% बताया था वो 10% कर दिया है. सो फर्स्ट विल सी आर्टिकल में क्या क्या उन्होंने रिपोर्ट में इंडिया के बारे में बताया है, एंड देन विल सी अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड बाय एशियन डेवलपमेंट Bank. So the Asian Development Bank has cut its forecast for India's GDP growth in 2021-22 to 10% from 11%, which was prior given it, because they have seen the rising input of cost fueling inflation. हमारा कॉस्ट उन्होंने इन्फ्लेशन देखा 5.2% से हमारा फेस जो है 5.
1% के फेस पे ग्रोथ हो रहा है इन्फ्लेशन का, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा ग्रोथ रेट जो या फिर हमारा ग्रोथ रेट को कट डाउन कर दिया है बाय 1%. So, while COVID second wave has disrupted the recovery since ADBI's April forecast for 11%, bank has expected the economy to rebound strongly the remaining 3 quarter by 10%. तो एक इन्फ्लेशन भी रीज़न था, दूसरा रीज़न भी था, ये था दैट वाज कोविड. कोविड की वजह से क्या बोलना है कि हमारा रिकवरी रेट स्लो जा रहा है, स्लो हो रहा है. तो दैट वाज द रीज़न ऑल्सो कि उन्होंने हमारा 11 से 10% का ग्रोथ रेट दिखाया है अभी. फिस्कल ईयर बिफोर द मॉडरेट 2020 to 23 का उनका एस्टिमेशन है 7.5%. वो और नीचे गिर रहा है. स्टिल द रिस्क टू द आउटलुक टिल्ट्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन. ये जो है हमारे एडीबी के जो डायरेक्टर हैं रिसर्च अब्दुल एबेद, उनका ये मानना है, उन्होंने द हिंदू को ये चीज़ बोला कि आगे जाके जो है नंबर एस्टिमेशन बदल भी सकता है, बट कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स की तरफ ही टिल्टेड है अभी भी. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द बिट ऑप्टिमिस्टिक. पॉजिटिव सेंस में क्या बताया है एडीबीआई ने. सो कंसीडिंग द एडीबीआईज आउटलुक वाज बिट ऑप्टिमिस्टिक compared to the Reserve Bank of India, which now expects 9.5% growth rate here. ये बिट ऑप्टिमिस्टिक क्यों बोला है, इसके लिए क्योंकि उन्होंने 10% का बोला, बट हमारा जो आरबीआई ऑफ इंडिया है उन्होंने एस्टिमेशन 9.5% ग्रोथ रेट दिया है. सो उससे पॉजिटिवली, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिवली हमारे एडीबीआई ने हमें नंबर्स दिए हैं. So Dr. Abed said, we didn't change it much from the earlier forecast because we have only 1 quarter fiscal year yet. The second wave, हाँ, तो ये उनका स्टेटमेंट है. उनका ये भी बोलना है कि जो सेकेंड वेव आया है हमारा हैज़ एक्चुअली डिक्लाइन, बहुत इकोनॉमी हमारा बहुत रैपिडली डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव. और उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं हमारा जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसको पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि शायद पॉजिटिव थोड़ा सा हो सकता है. परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो है परचेसिंग पावर बताता है कंट्री का. सो उसको स्टडी करते उन्होंने बोला कि शायद पॉजिटिवली थोड़ा इंडिया का ग्रोथ होगा. इसके लिए हमने 1% का डेफिसिट या फिर 1% का रिड्यूस किया है. Because consumption will recover only gradually, the government spending and exports will contribute more this year growth than the previous year. एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने 11 से सिर्फ 10 किया बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है इस ईयर में, या इट इज़ शोइंग द साइंस की इंक्रीज़ हो सकता है. So rise in the price of oil, other commodities will further increase the input and transportation cost. और ये सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स पे पास आउट होगा, जिसके वजह से इकोनॉमी का फंक्शनिंग थोड़ा स्लो हो सकता है. सो दैट वाज द कंक्लूडिंग थिंग जो एडीबीआई ने बोला कि दैट इज़ द रीज़न हमने फेज़ आपका थोड़ा स्लो कर दिया है या थोड़ा उसको डाउन कर दिया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल के बाद हम देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक. ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड अगर हम बात करें, सबसे पहले चीज़ इफ़ यू विल नो, रिसेंटली 2021 में हमारी मीटिंग हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे तरफ से फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी गई थी इस डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. एक सेमिनार हुआ था ऑन द टॉपिक ऑफ कॉपरेशन फॉर रीसेलेंट फ्यूचर. ये थीम या ये मीटिंग का टॉपिक था, कॉपरेशन फॉर रीसेलेंट फ्यूचर. ठीक है, तो ये एनुअल मीट था इस साल का 2021 का, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर गई थी रिप्रेजेंट करने को. तो उसमें जाने के बाद ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए कि 2001 में हुई थी मीटिंग. सीतारमन जी ने अप्रिशिएट किया जो एडीबीआई काम कर रहा था कोविड सिचुएशन में लोगों को मदद करने के लिए, कंट्रीज़ को मदद करने के लिए. सो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर 2021 में मीट हुई थी. टॉपिक क्या था? कॉपरेशन फॉर रीसेलेंट फ्यूचर. कहाँ कौन गई थी? हमारी तरफ से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर गई थी. अब देखते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में.
सो ADBI के बारे में अगर ये दिया जाए कि इज इट अ इंटरनेशनल, इज इट अ इंटर गवर्नमेंटल और व्हाट, सो द थिंग इज ADBI जो है वो हमारा रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। सो इट इज़ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। करेंटली अगर हेडक्वार्टर्स हम देखें, इसका हेडक्वार्टर मनीला है, मनीला आपका फिलीपींस में आता है। सो करेंट हेडक्वार्टर ADBI का मनीला है, और इसका ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो UN को दिया। UN इज़ द ऑब्जर्वर कंट्री और द ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ADB। अभी इसके मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं? तो इसके मेंबर्स जो भी अभी जो करेंटली मेंबर्स कौन कौन हैं, तो UN इकोनॉमिक और सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक इसके मेंबर हैं, जिसको हम UNESCAP भी बोलते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक, ठीक है। और हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, करेंटली अगर हम बात करें, करेंटली ADB में देयर आर टोटल 68 मेंबर कंट्रीज़, जिसमें से 49 जो है वो एशिया के कंट्रीज़ हैं। 68 टोटल मेंबर कंट्रीज़ है, जिसमें से 49 मेंबर्स आर फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट से 49 कंट्री बिलोंग टू द मेंबर ऑफ ADB, ठीक है। सो इसका वोटिंग पैटर्न, मतलब इधर भी प्रॉपर एक वोटिंग पैटर्न होता है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग ऑफ मेंबर और दी हेड ऑफ इट। एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 ADBI के जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं करेंटली 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से, अभी तक के जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, जापान और US जो हैं दोनों सेम नंबर ऑफ परसेंट पे हैं, दैट इज़ 15.6%, दैट इज़ जापान एंड US, ठीक है। उसके बाद चाइना, अगर हम बात करें, चाइना शेयर्स द रेट ऑफ 6.4% शेयर होल्डर। चाइना के बाद इंडिया आता है 6.3% शेयर होल्डिंग, और इंडिया के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ 5.8 शेयर होल्डिंग। सो दिस आर द 5 कंट्रीज हु हैव द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग of ADB. So USA, जापान, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसके रोल क्या होते हैं, अगर लास्ट हम देखें रोल के बारे में, इसका रोल सबसे पहले कि सभी कंट्रीज से पॉवर्टी हटाने का, बेसिकली एशियन और पैसिफिक कंट्रीज में से पॉवर्टी हटाने का काम, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, then to have a sustainable growth, to have a regional integration between the countries, to reduce the poverty or reduction of poverty. This is the first function that ADBI tries. सेकेंड बात करें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फॉर्म में होता है, तो ये लोन्स देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, ठीक है, शेयरिंग्स होती है, देन हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, नेशंस को हेल्प करते हैं, अगर कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, कुछ डिज़ास्टर्स हैं, उनको मदद है, जैसे कि पैंडमिक सिचुएशन, ऑलमोस्ट 2 साल से पैंडमिक सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस टाइम पर भी ADBI ने बहुत सारी कंट्रीज़ को एड किया, बहुत सारी कंट्रीज़ को हेल्प किया, ताकि उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ और कंट्री को थोड़ा सा सपोर्ट दे पाए। सो ये सब चीज़ें हैं हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जो आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्स हम मेंस के टाइम से भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो हमें बोलता है रेलवे फीलिंग फाउज ऑफ CVC नॉर्म्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल अगर हम बात करें, हमारा जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, ठीक है, CVC अगर हम बात करें, चीफ के जो ऑफिसर हैं, उनकी वर्किंग फेलिंग के बारे में बताया है। तो पहले आर्टिकल में देखेंगे क्या रेलवे के पर्सपेक्टिव से बोला है, क्या फेल हुआ है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, एंड देन हम इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये पोस्ट है क्या, कैसे होता है और नॉट। So in what could be the major setback to the vigilance director of the railway, principal economic advisor of finance, Government of India, Sanjeev Shyamal has said organization is functioning in violation of CVC. CVC क्या है आपका? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गाइडेंस। तो इनका जो गाइडलाइंस दिया है उसकी अगेंस्ट या उसको वायलेट करके करंट रेलवे फंक्शनिंग की जा रही है, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट रेलवे सोर्सेज सेड प्रिंसिपल
economy advisor notes that raises the question on the legality legality, or we can say the legality or the pending cases of director relating to the allegations of corruptions and other involving thousands of employees. ठीक है, इसका अगर बात करें, मिस्टर श्यामल ने बोला था कि रेलवे हैड द लार्जेस्ट विजिलेंट डायरेक्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ओवर 1170 personals, including 192 officers, but the administrative structure is not compliant with the CVC guidance. ठीक है, तो ये बोला है कि वन ऑफ द मेजर जो सीवीसी की वर्किंग है वो रेलवे में की जाती है, बट सीवीसी का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं नहीं काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे करप्शन केसेस और ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अलग अलग तरह के केसेस दिखा रहे हैं, विच शोज द ड्रॉबैक ऑफ द बॉडी. While the CVC has mandated its circular issued in 2001 that the chief vigilance officer of the organization should be external, the post is appointed with the इंटरनल ऑफिसर्स इन दी रेलवे. ये बोला गया था कि जो सीवीसी के चीफ होंगे उनको एक्सटर्नली अपॉइंट किया जाएगा, ना ही रेलवे के अंदर से, बट ये देखा गया कि उनको रेलवे के अंदर से अपॉइंट किया है. तो सबसे पहला हम देख सकते हैं लैकिंग ऑफ वर्क इनका. दूसरी चीज, इनफैक्ट ऑल द पोस्ट इन द विजिलेंस डायरेक्टर्स ऑफ द रेलवे एक्सेप्ट द डायरेक्टर इज फिल्ड फ्रॉम इंडियन पुलिस सर्विसेज आर इंटरनल. फर्दर इन मेनी विजिलेंस ऑफिसर्स टेन्योर लॉन्गर देन परमिटेड. जो भी ऑफिसर्स हमने बात किया, दे आर मेनली द IPS ऑफिसर्स. अपॉइंटमेंट के बाद ये चीज़ देखा गया था कि इनका जो टेन्योर फिक्स किया है उससे ज़्यादा तक इनको वहाँ पर फंक्शनिंग के लिए दिया गया है, बिकॉज ऑफ फेवरिज्म हम समझ सकते हैं. तो ये भी कहीं ना कहीं CVC के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा है. In its recommendation, the expert panel headed by Mr. Sanyal said Railway should ensure that Vigilance Director should follow the CVC guidelines. क्योंकि रेलवे की अगर हम हेड बात करें तो वो हमारे विजिलेंस डायरेक्टर होते हैं. विजिलेंस डायरेक्टर ही अगर ढंग से काम नहीं करेंगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द पर्सनल्स एंड ऑफिसर्स टू वर्क अकॉर्डिंगली. So the railway is one of the largest employers with over 12 lakh staff and officers. Though CVC guidelines prescribes that the central vigilance officer should be appointed from other ministries, the post in the rank is filled internally. ये चीज़ मैंने जैसे पहले बताया, सबसे पहला ड्रॉबैक था कि ये चीज़ बोला था कि आप इंटरनली उनको अपॉइंट नहीं कर सकते, रेलवे की मिनिस्ट्री के अंदर से नहीं कर सकते, आपको उनको एक्सटर्नली अपॉइंट करना पड़ेगा. बट ये चीज़ नोटिस किया गया था कि जो CVC ऑफिसर थे उनको इंटरनली अपॉइंट कर दिया. दूसरा IPS ऑफिसर्स पर्सनल्स का हमने देखा. ठीक है, सो द मर्जर ऑफ डायरेक्टरेट्स. The report also said the number of directorates in the railway boards are reduced to 52 by merging the directorates that had similar functions. मेजर पर्सपेक्टिव में देखें तो रेलवे की फंक्शनिंग बहुत बड़ी है एंड देयरफॉर दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टरेट, हेडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. बट करंटली ये देखा गया था कि हेडिंग्स को कम करके 52 कर दिया, स्टेटिंग कि इनके फंक्शन सेम ही होते हैं, तो कहीं ना क्यों ना एक ही डायरेक्टर उनको संभाले. सो दे हैव मर्ज इट. ठीक है, रिकमेंडेशन इट रिकमेंडेड दैट ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टर बी मर्ज्ड विद द ट्रैफिक कमर्शियल डायरेक्टर. एक एग्जाम्पल बताया है कि जैसे ट्रैफिक डायरेक्टर थे उनको ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टर कमर्शियल डायरेक्टर के साथ मर्ज कर दिया. फिर इकोनॉमिक विद स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक जो टूरिज्म के रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है, उसको रिफॉर्म्स और फाइनेंस के तरह साथ मर्ज कर दिया. तो ऐसे मर्ज करते करते करेंटली इंडियन रेलवे में वी हैव 52 डिफरेंट डायरेक्टरेट्स वर्किंग अंडर द CVC गाइडलाइंस. ठीक है, सो ये आर्टिकल हाँ कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनिंग्स लैगिंग बैक दिखा रहा है CVC का, और उन्होंने ये चीज़ बोला है कि आप CVC के गाइडलाइंस के हिसाब से चलो, ना कि इंटरनली खुद से और अपने डिसीजंस के हिसाब से चलो. नाउ विल मूव टू द ऑर्गेनाइजेशन जो CVC जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंड विजिलेंस कमीशन.
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर हम बात करें, इट इज़ अ विजिलेंस कमीशन विच इज़ फ्री ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं करता, इट इज़ फ्री ऑफ कंट्रोल। और सबसे मेन ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है जो कि हमारे सारे विजिलेंस एक्टिविटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विजिलेंस एक्टिविटीज़ हैं उनको उनको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व करता है, उन पे एक सर्विलेंस रखता है। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्लानिंग विजिलेंस हो गया, रेलवे हो गया, देन रिफॉर्म्स के रिलेटेड हो गया, तो सबके ऊपर एक बॉडी होता है दैट इज सीवीसी, जो सबके वर्किंग्स को देखेगा कि ये लोग किधर गलत करें। जैसे कि रेलवे का भी हमें आर्टिकल आया कि इनकी गलती, और सीवीसी ने बताई कि आप गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं जा रहे हो। So vigilance actually means to have a clear vigilance, or we can say clear surveillance of the bodies that are under your, ठीक है। अगर वो लोग कुछ लॉस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन आ रहा है, तो वो सब का जो भी काम है कि ये सब के रिलेटेड जो चेंजेस आना है वो सीवीसी ला के देगा। सीवीसी की अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, तो गवर्नमेंट में फेब्रुवरी 1964 को सीवीसी एज अ बॉडी जो है रेकमेंड किया गया था बाय द कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, ये कमिटी थी जो कि श्री संथनम के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी, दी कमेटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। उसके अंदर उन्होंने रेकमेंड किया कि हमें एक बॉडी चाहिए एज सीवीसी जो कि सारे ही सब पर विजिलेंस रख सके। उसके बाद 1964 में ये चीज़ बोला गया और पार्लियामेंट ने इसको प्रॉपर एक्ट में, दैट इज़ 2003 में पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंग टू द सीवीसी एक्ट एक स्टैट्यूटरी स्टेटस पे एक बॉडी बनाई जिसको हम आज के टाइम पे सीवीसी बोलते हैं। ये चीज़ बोला जाता है कि सीवीसी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही बॉडी को रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द पार्लियामेंट। ठीक है, सिर्फ अगर वो रिपोर्टिंग है जो भी है वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही करेगा और कोई क्वेश्चन इनको नहीं कर सकता। नाउ फंक्शंस अगर देखते हैं सीवीसी की फंक्शंस क्या है। सो सीवीसी सबसे पहले अगर कहीं से ये कंप्लेन उनको आती है अबाउट द करप्शन, अबाउट द लैकिंग, तो वो उसके रिलेटेड अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। जैसे हमने देखा सीवीसी का बनने का रीज़न क्या था उस टाइम पे, करप्शंस को रोकने के लिए एक बॉडी बनाई थी। सिमिलरली सबसे पहला फंक्शन उसका है कि कहीं से भी करप्शन के रिलेटेड कुछ न्यूज़ उनको मिली तो उसके रिलेटेड अप्रोप्रिएट एक्शन जो है सीवीसी लेगा। ठीक है, और ये जो बॉडीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हो सकते हैं, लोकपाल के बॉडीज़ हो सकते हैं, या अगर कोई विसल ब्लोअर्स हुए कि मतलब जो पुश आउट करते हैं उनके रिलेटेड एक्शन ये ले सकता है। ठीक है, विसल ब्लोअर्स हम किनको बोलेंगे कि जैसे कि देर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, एक आदमी है बाय द नेम ऑफ राम, वो ए में काम करता था, उसको बी के तरफ से जो है एक ऑफ़र आया कि अगर आप हमको इनकी इंफॉर्मेशंस देंगे हम आपको डबल पे करेंगे। तो दिस पर्सन बिकम्स अ विसल ब्लोअर फॉर कंपनी ए। तो किसी भी तरह का अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में कोई विसल ब्लोअर हुआ, कोई सेंट्रल एम्प्लॉय हुआ, उनके रिलेटेड एक्शन जो है वो सीवीसी लेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीवीसी इज़ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नहीं, सीवीसी कोई भी तरह का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना और विजिलेंस रखना इज़ अ वास्ट डिफरेंट थिंग। सीवीसी इन्वेस्टिगेट नहीं करता, वो विजिलेंस रखता है। अगर उनको लगता है कि गलत है तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा। इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ सीवीसी में नहीं है, मेक इट क्लियर। ठीक है, उनको हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अगेंस्ट अगर कोई दिख रहा है कि कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई गलत एक्शन कर रहा है करप्शन को लेके, उनके अगेंस्ट वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। और वन ऑफ द मेन एलिमेंट है कि एनुअली वो रिपोर्ट शो करते हैं, रिपोर्ट देते हैं कमीशन को, विच शोज़ द फेलियर, कहाँ पे फेलियर हुआ है, कहाँ पे करप्शन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से, कौन सी बॉडी की गवर्नमेंट वर्किंग अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इसका। सो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट लाया गया था 1941 में, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट लाया गया था। ये बॉडी का काम क्या था कि ये बॉडी इन्वेस्टिगेट करता था किसी भी तरह की ब्राइबरी और करप्शन के रिलेटेड वर्क। ठीक है, 1941 में ये बॉडी बनाई गई थी कि कहीं पे भी ब्राइबरी जारी है या करप्शन ली जा रही तो उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ये करेगा। फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये बॉडी को जो है प्रॉपर एक्ट में इन्फोर्स कर दिया गया
1946 में बाय द नेम ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, तो उनको प्रॉपर एक बॉडी बनाया गया। फिर उसके बाद हमारी मिस्टर संतनम ने एक बॉडी बोला, वी नीड अ बॉडी, एंड देन आगे की चीज़ें हमने पढ़ी कि 2003 में जैसा जैसा एक बॉडी बनाया गया। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए CVC थोड़ा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था कि चीज़ें क्या है, और हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिलेटेड। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया कंसिडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू UK क्वारंटाइन रूल्स। ये आर्टिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ टू बी अप टू डेट, मैंने ये आर्टिकल द हिंदू से लिया। अप टू डेट क्यों बोल रही हूँ मैं ये, इसके लिए क्योंकि इंडिया ने बोला कि अगर UK अपना पॉलिसी रूल चेंज करेगा रिलेटेड टू क्वारंटाइन, देन ओनली वी कैन रिवर्ट बैक द रिलेशन विथ UK, नहीं तो वी विल हैव अ स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप। सो ये आर्टिकल थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज़ बोल रहा है। सो इंडिया कुड इम्पोज अ रेसिप्रोकल मीन्स टू गो बैक, उल्टा उसका। India could impose reciprocal measures to UK if London maintains the current quarantine policy that is subjected to the Indian travelers irrespective to the vaccination status to the quarantine period of lasting of 10 days। तो ये हमारे मिस्टर हर्षवर्धन जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बन के गए थे, उनका ये बोलना है कि देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ही नोटेड एट दी प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने बोला कि अगर वो लोग ये पॉलिसी रखेंगे कि वैक्सीनेशन है कि नहीं है, बट 10 दिन का क्वारंटाइन के बाद यू आर एबल टू गो टू UK, तो हम अपनी पॉलिसीज़ को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन का बोलने का मतलब क्या है, तो उन्होंने ये इशू बताया हमारे UK के फॉरेन सेक्रेटरी को, एंड आई एम टोल्ड दैट सर्टेन अश्योरेंस हैव बीन गिवन दैट दिस इशू वुड बी रिजॉल्व। उनको एक अश्योरिटी दिया कि ये इशू हम रिजॉल्व करके देंगे। सो अगर ये चीज़ आया कि इंडिया ने किस कंट्री को लेके ये बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ द क्वारंटाइन रूल्स, तो यू शुड नो इट इज़ रिलेटेड टू UK। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज आर्टिकल। आई होप सो आज की आर्टिकल आपको क्लियरली समझी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, do like and subscribe the channel. Thank you so much.